Hi students, how are you? A very warm welcome to you all to this chemistry session. Myself Vinita from Catch 25 Science Academy. Our today's video is on ideal and non-ideal solution. Here we'll solve MCQs also, and in short I will explain you what is ideal and what is non-ideal solution. Okay, so let's start with it. So what is ideal solution? What is ideal solution? So solution obey. The solution which obey Raoult's law is ideal solution. So we have already studied Raoult's law in part 2 of solution. So all students, those who are watching my video for first time, so let me tell you, I have already recorded 11th standard chapter MCQs 12 स्टैंडर्ड का सॉलिड स्टेट भी अपलोडेड है यूट्यूब पे एंड अभी सॉल्यूशंस के भी काफी वीडियो अपलोडेड है सो यू कैन गो थ्रू इट एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल कैच 25 साइंस एकेडमी. So what is Raoult's law? This we have already discussed. So the solution which obey Raoult's law is ideal solution. So now here you can see the graph of ideal solution. So on y-axis you can see there is vapor pressure and on x-axis you will see there is a mole fraction. So at this point you have A and B components present. Okay, A and B components both are present in a solution. So at this point हम लोग consider करते हैं mole fraction of A is 1. तो अगर A 1 है तो B will be 0 na. We have already studied about this. Mole fraction of A plus mole fraction of B is equal to 1. So if A is 1 then B is going to be 0. Yes all of you. So ये point पे सिर्फ A component present है तो जो मुझे vapor pressure मिलेगा वो सिर्फ A का होगा and it will be a pure A, so it is PA naught. So we have already discussed कि whenever there will be a naught it will be a vapor pressure of pure component. So now यहाँ पे ये point पे सिर्फ A is present, so वो point पे जो मुझे vapor pressure आएगा वो सिर्फ and सिर्फ A का रहेगा, so it will be PA naught. Now when we move towards the right side, A का concentration क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है. And ये देखो इधर आके ये point पे at the end it has become 0. अब XA 0 है इसका मतलब XB will be 1. So from this equation, so अभी ये पॉइंट पे मुझे वेपर प्रेशर जिसका मिलेगा that will be a pure B because A है ही नहीं वहां पे, only B is present, so vapor pressure will be only of what? Only of B. Now we have already studied Raoult's law. PA is equal to XA naught. Now this is directly proportional to this. ये तो constant रहेगा. तो जैसे जैसे एक एक्स ए का वैल्यू क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जाता है, एंड इट इज बिकमिंग 0. व्हेन दिस इज 0 दिस इज आल्सो 0, सो एट दिस पॉइंट इट इज 0. सो वी आर गेटिंग दिस लाइन. ठीक है, ये डॉटेड वाला लाइन. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज व्हाट, एक्स ए पी ए नॉट. सो सिमिलरली हम लोग जब ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, बी का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है, बी का मोल फ्रैक्शन इज गेटिंग डिक्रीज्ड. सो इफ बी का मोल फ्रैक्शन इज डिक्रीज, क्या है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन अ सोल्यूशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी. तो ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा. सो इन दिस डायरेक्शन इट इज गेटिंग डिक्रीज, सो ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है.
At this point, xb is 0. So pb is also 0. ठीक है. अब मैं pa, we have already done this. pa naught plus pb naught, that is equal to total pressure. Sorry, pa plus pb, that is equal to total pressure. So when we join this line, तो अपने को क्या मिलेगा? Total pressure मिलेगा. This is all about ideal solution. Now, what are the characteristics of ideal solution? So, सबसे पहले आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि अभी सपोज यू हैव टू कंपोनेंट्स, यू हैव A component in this beaker and you have B component in this beaker. So यहाँ पे कैसा होगा, ये beaker में सब A bonded होंगे और यहाँ पे सब B bond होंगे. ठीक है. अब मैंने क्या किया, ये दोनों को भी, ये दोनों कंपोनेंट्स को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया ये बड़े बीकर में. तो अभी यहाँ पे क्या बनेगा, A और B का इंटरेक्शन होगा. ओके. सो विल कंसीडर कि ये सॉल्वेंट है, ये सल्यूट है, और व्हेन दे आर मिक्स्ड दे आर फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन हियर. So now in ideal solution, interactions between solvent solute, solute and solvent are comparatively same. क्या प्रॉपर्टी है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंटरैक्शन ऑफ solute solvent and solvent is comparatively same. Okay, because it's an ideal solution. Now here delta H on mixing is 0. Why? Enthalpy on mixing is 0. Change in enthalpy of mixing is 0. Because on mixing, interactions same hai. Comparatively, interactions are similar. So, no heat is evolved or no heat is absorbed. Also, change in volume of mixture is 0. मिक्सचर में जाने के बाद वॉल्यूम का भी कोई चेंज नहीं आता है. Now, next property is the vapor pressure. The vapor pressure of solution. The vapor pressure of solution lie between the vapor pressure of solute and solvent. Means ये दोनों का जो भी वेपर प्रेशर रहेगा उसके बीच में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रहेगा. Okay, so this was all about the ideal solution. Abhi ideal solutions ke example, what are the examples? So now for example, benzene and toluene, they are ideal solution. So those who have similar structure, जिसका structure similar है, those who have similar structure forms ideal solution. So benzene or toluene, benzene is C6H6 and toluene is C6H5CH3. So उसका structure जो है वो comparatively कैसा है? Same है. So therefore it is nearly ideal. Okay. Now let's move on to non-ideal solution. Now non-ideal solution जो होता है ये दो टाइप का होता है. That is non-ideal solution showing positive deviation and non-ideal solution showing negative deviation. So पहले हम लोग पॉजिटिव डिविएशन वाला स्टडी करेंगे एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव डिविएशन वाला स्टडी करेंगे. सो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है ये राउल्स लॉ ओबे नहीं करता है. इट डू नॉट ओबे
obey Raoult's law. Okay, ideal solution obey Raoult's law, and this does not obey Raoult's law. Now here if you see this graph, similar type का ही है. This is 0 here, this is 1 here. तो इसका जो ग्राफ है ये इंक्रीज होते जा रहा है. 0 से 1 हुआ ना, so इसका concentration has got increased, so graph is increasing. Now at this point x1 is 1, so मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, p1 not. Now at this point x2 is 1 and therefore x1 is 0, so मुझे ये point पे क्या मिलेगा, p2 not. ठीक है. Now you can see here, ये जो डॉटेड वाला है ना वो आइडियल गैस का ग्राफ है, और जो ये डिविएशन है, ये जो ग्राफ बनाया है वो पॉजिटिव डिविएशन. पॉजिटिव डिविएशन मींस आइडियल से अपने को क्या हो रहा है, नॉन आइडियल में डिविएशंस मिल रहा है. पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा आइडियल का ग्राफ है, इसके ऊपर आ रहा है ना, इसके ऊपर ग्राफ मिल रहा है, इसीलिए ये कैसा है, पॉजिटिव डिविएशन. इसके नीचे आएगा तो नेगेटिव डिविएशन. सो सिमिलरली वी हैव स्टडीड इन स्टेट्स ऑफ मैटर आल्सो. वहां पे भी अपने को आइडियल गैस का ग्राफ था, उसके ऊपर सम ग्राफ मिलते थे, उसके नीचे कुछ ग्राफ मिलते थे. सो जो आइडियल के ऊपर मिलता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड उसके जो नीचे मिलता है वो ऑलवेज नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं. ठीक है. तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एक मोल फ्रैक्शन ले रही हूँ, लाइक ये वाला पॉइंट लिया मैंने. अब ये पॉइंट पे मुझे आइडियल का जो वेपर प्रेशर है वो इतना ऑब्टेन्ड हुआ, एंड वही सेम मोल फ्रैक्शन पे जो नॉन आइडियल है उसका वेपर प्रेशर मुझे यहाँ पे आ रहा है. तो इधर से मुझे क्या पता चल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल is less than that of vapor pressure of non-ideal. So इसका वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग्स कैसी है, वीक है. इसकी बॉन्डिंग कैसी है, वीक है. नाउ इफ यू टेक एसीटोन एंड वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन के वेपर्स ज्यादा बनेंगे कंपेयर टू वाटर, तो एसीटोन का वेपर प्रेशर भी ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू वाटर. तो वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि वेपर्स ज्यादा बन रहे. वेपर्स क्यों ज्यादा बन रहे, क्योंकि वो वोलेटाइल है. नाउ व्हाई इट इज वोलेटाइल, बिकॉज बॉन्डिंग्स आर वीक. Yes, all of you are you getting this? So now here कैसा होता है, solute solvent interactions are weaker than solute and solvent. इंटरैक्शंस वीकर होता है, इसीलिए वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हुआ, इसका मतलब डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग इज पॉजिटिव. व्हाई इट इज कमिंग पॉजिटिव, बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब. हीट एब्जॉर्ब हुआ तभी बॉन्ड्स ब्रेक हुए, तभी वेपर्स बना, एंड वेपर प्रेशर इसीलिए ही क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. वेपर्स बन रहे हैं ना, वेपर्स का वॉल्यूम इज मोर देन दैट ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, सो वेपर वॉल्यूम विल बी also positive. Now what are the examples for this? Ethanol and acetone. They are not structurally similar. Carbon disulfide and acetone, they show positive deviations. Now let's study negative deviation. So negative deviation में तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ग्राफ ऑब्टेन्ड हुआ है ये कैसा है,
आइडियल के नीचे है, आइडियल ग्राफ जो है उसके नीचे है, इसका मतलब ये कैसा है, इट इज शोइंग नेगेटिव डिविएशन। सो अभी मैं यहाँ पे वेपर प्रेशर चेकआउट करती हूँ। मैंने ये एक मोल फ्रैक्शन लिया है, इस पे मुझे नॉन आइडियल के लिए इतना आया वेपर प्रेशर, एंड सेम इसके लिए मुझे मोल फ्रैक्शन सॉरी आइडियल के लिए इतना आया। सो मुझे यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल वन is more than vapor pressure of नॉन आइडियल सोल्यूशन। सो अभी इसका वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज है, क्यों लेस है, क्योंकि इसके बॉन्डिंग्स कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सल्यूट सॉल्वेंट interactions are stronger than solute and solvent। इसके वजह से क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। नाउ एकदम सिंपल है, अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग होंगे तो बॉन्ड्स इजीली ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड्स इजीली नहीं ब्रेक होगा तो क्या होगा, ज्यादा मोल्स नहीं बनेंगे वेपर फेज में, एंड देयरफॉर वेपर प्रेशर विल गेट डिक्रीज। सो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन इज नेगेटिव। सो यहाँ पे क्या होता है, हीट इज इवॉल्व्ड। देन यहाँ पे वेपर फेज में क्या है, कम है ना, वेपर प्रेशर इज लेस, यानी वेपर फेज में जो सब्सटेंस है, कंपोनेंट्स है, वो लेस है, इसका मतलब V इज नेगेटिव। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स फॉर दिस, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। Okay, now let's do some MCQs for this. So what are the conditions for ideal solution which obey Raoult's law over the entire range of concentration? So अभी हम लोग ने किया ना ideal solution के लिए, for ideal solution delta H is 0, delta V is 0. And total pressure is what, PA plus PB, that is PA naught XA plus PB naught XB. So your answer is A. Which of the following is an example of negative deviation? तो ये अभी हम लोग ने किया था ना, इसका आंसर क्या है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। Which of the following show positive deviation? So this also we have done it. That is acetone and ethanol. So all of you have to read textbook carefully. When acetone and chloroform are mixed together, acetone and chloroform, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म क्या करते हैं, नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। सो व्हेन दे आर मिक्स टुगेदर तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। नेगेटिव डिविएशन क्यों शो करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का जो इंटरैक्शन होता है दैट इज स्ट्रॉन्गर, मीन्स सल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये जस्ट अभी हम लोग ने स्टडी किया था। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस, AA and interaction are stronger,
AABB interactions are weaker? Yes. So your answer is B. ये stronger है ना? So ये weak होगा. Okay. Intermolecular forces between N-hexane and N-heptane are nearly same as between hexane and heptane individually. Then these two mixed, when these two are mixed, which of the following is not true about the solution? So ये कैसा है? Ideal solution है. So it will obey Raoult's law. Correct है. यही है Raoult's law. ये zero आएगा. Volume and enthalpy will be zero. So A, B, C is correct. So D is wrong. Ideal solution is formed when its component क्या होता है? Delta H of mixture is 0. Delta V of mixture is 0. So its answer is C. Okay, so this was my last MCQ for this video. I hope all of you have understood this. So please like and share this video, and अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो. सो ये ऐसे क्राइसिस वाले टाइम पे मे बी उन लोग के लिए ये सब वीडियोस हेल्पफुल हो सकता है. सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड पढ़ाई करते रहो. ओके, टेक केयर, घर पे रहो. बाय बाय.